Hello friends, myself Dr. Santosh Maurya. Once again, welcome back to my YouTube channel. In this particular video, I'm going to talk about consumer behavior and the different factors that are influencing the consumer behavior. So let's begin with it. So if you find my video interesting, so please like, share and subscribe. So let me begin with my presentation. So dear friends, before starting the consumer behavior, let us first understand what is the meaning of consumer behavior. As we all know, the meaning of consumer is by a person who is consuming something. And by this term, we mean that if a person is ready to sacrifice his resources and that to financial resources to buy something and then consume it, we call that person as a consumer of that particular product. And behavior, each and every consumer has a different behavior, means he behaves differently to different products which are available. So let me give you example. Suppose a snake comes in front of us. So what happens? Some of us say, wow, what a beautiful snake it is. Some of us just run away from there, fearing, oh my God, there is a snake, there is a snake, there is a snake. And some other, oh, give me my gun, or mujhe lathi do, main iske maru pehle. So same stimulus and three different people are behaving in a three different manner. One is amazed by the color and the shine of the snake. The second person is getting afraid and running away. And the third one is ready to kill that snake. So same stimulus in front of three people and their behavior is different. So my dear friend, this particular snake was not having any financial in my कोई भी financial इसके अंदर मेरा benefit नहीं था. Then also we three are behaving differently. Then think about a product that I am going to buy from my hard-earned money. So obviously, I am going to behave, or different people are going to behave in different manner while they are purchasing the product. So this is the thing that we have to understood today, why it is important to understand the consumer behavior before doing any kind of marketing activity. So this particular topic comes under marketing. So let's begin with it. So dear friends, so in this scenario or in this earth, there are millions of people, millions of products are there. We all are using them. Different product is being used by different person. So जब हम product को use करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे पास आया और सीधा बोलता है सर ये product ले लीजिए और हम तुरंत अपने जेब से पैसे निकालते हैं भैया ये लो लाइए product दीजिए. No, कुछ चीजें हैं जो इसको डिफाइन करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हैं भी या नहीं है. तो सबसे पहले तो हमारी नीड होती है. तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड है तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, अदरवाइज परचेज नहीं करेंगे. दूसरा होता है फाइनेंशियल. इफ आई एम फाइनेंशियली दैट स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, then also I will think once at least, and if I'm capable I will purchase. If I'm not, I will not purchase. First, the most important thing is need. अगर मुझे need है उसकी तो मैं उसे परचेज करूंगा, अदरवाइज मैं उसे परचेज नहीं करूंगा. सो एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. So the term consumer behavior is defined as the behavior that consumer displays in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of product and services that they expect will satisfy their need. हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी चीजों को ढूंढ रहे होते हैं या जो चीजों की हमें जरूरत होती है हम उन्हें ढूंढ रहे होते हैं. क्यों? ताकि उनको परचेज करें. किस लिए परचेज करें? यूज करने के लिए.
इवेल्युएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ताकि उन प्रोडक्ट को, उन गुड्स को, उन सर्विसेज को हम इस्तेमाल करें और डिस्पोज ऑफ करें. एंड that expect their need. Consumer behavior focuses on how individuals make decision to spend their available resources like time, money and effort. कंज्यूमर के पास तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, टाइम, मनी एंड एफर्ट. तो मैं बेफालतू अपना पैसा किसी पे खर्च क्यों करूं, मैं बेफालतू अपना समय किसी पे बर्बाद क्यों करूं, और बेवजह मैं अपने एफर्ट्स किसी चीज पे खर्च क्यों करूं जिसे मुझे यूज ही नहीं करना. तो इसलिए फ्रेंड्स, जब भी हमें मार्केटिंग करनी है, जिस जगह पे हमें मार्केटिंग करनी है, उस जगह के लोगों की हमें क्या करनी है, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करनी है. ऑन कंजप्शन रिलेटेड आइटम्स, क्योंकि नॉन कंजप्शन पे तो हम फोकस करने वाले ही नहीं है, तो हमें किस पे फोकस करना है, कंजप्शन आइटम्स पे, जो कि हम कंज्यूम करने वाले हैं. तो दिस इंक्लूड्स सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैं किसी प्रोडक्ट को क्यों कंज्यूम करूं, कैसे कंज्यूम करूं, किस लिए कंज्यूम करूं, कहां कंज्यूम करूं, कितना कंज्यूम करूं, कितना पैसा खर्च होगा. तो these are some of the questions that should be answered when we are studying consumer behavior. Like as I said, what they buy, when they buy, why they buy it, where they buy it, how often, कितनी बार हम उस चीज को खरीदते हैं, एंड हाउ ऑफन दे यूज, और हम उसे कितने बार उसे इस्तेमाल करते हैं. So these are some of the questions that should be answered. And after this, how they evaluate it after the purchase and the impact of such evaluation on future. और किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं, कैसे उसको इवेल्युएट करने वाले हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में रहने वाला है, एंड हाउ दे डिस्पोज ऑफ इट. आजकल हम लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं थ्रू लाइक अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट, इस तरह की वेबसाइट्स को बहुत इस्तेमाल करते हैं. डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करने वाले होते हैं, तो एक ऑप्शंस होते हैं उसके रिव्यूज को रिव्यू करने के लिए. मींस what kind of reviews have people given on that particular product. वो क्या है, वो ये है कि जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा था उनका एक्सपीरियंस कैसा है. और कई बार तो उसमें मतलब बाकायदा डिटेल देते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस वाज दिस, हाउ आई हैव परचेज्ड इट, ऐसे प्रोडक्ट निकला, ऐसे उसको यूज कर रहे हैं, बेकार निकला, खराब निकला, टाइम है या नहीं है, उसमें कई बार रेटिंग भी दी होती है, वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर परचेज, तरह के कई सारे हमारे रिव्यूज के पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें रिव्यू करते हैं. तो हम प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले ही उसको रिव्यू करके देख लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिव्यूज हैव बीन गिवन बाय डिफरेंट पीपल. अब क्यों रिव्यू कर रहे हैं हम, ताकि परचेज करने से पहले ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं, कि प्रोडक्ट को लेके हम पछताने लगे कि हमने क्यों पैसा खर्च किया, क्यों परचेज किया, इसे कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए था, मेरी स्किन पे तो इसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है. तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या कहते हैं, रिव्यूज का इस्तेमाल करते हैं. So coming to the next topic that is very important, that is factors influencing consumer behavior. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर इन सारे प्रोडक्ट्स, इन सारे पॉइंट्स को हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो हम अपने एक पर्सपेक्टिव कंज्यूमर को बायर में या कहते हैं कंज्यूमर में कन्वर्ट कर लेंगे. There is a difference between perspective consumer and a consumer. पर्सपेक्टिव कंज्यूमर होता है जो कि कंज्यूमर है नहीं, लेकिन उसको कंज्यूमर में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं कि आई एम सेलिंग दिस माउस, टू पीपल्स हैव कम टू माय शॉप. एक ने इस माउस को पूछा भैया कितने का, मैंने कहा 300 रुपए का. ही पेड मी 300 रुपीज एंड टुक अवे माउस. ही इज बायर, ही इज माई कंज्यूमर नाउ. एंड सेकंड आदमी ने क्या कहा, भैया जरा दिखाइएगा, उसका स्पेसिफिकेशन देखा, उसका रेट लिया, उसका सब कुछ देख लिया, अच्छा भैया से रखिए, संडे को आके ले जाऊंगा. हैड ही परचेज द प्रोडक्ट? नो. ही इज माय पर्सपेक्टिव कंज्यूमर, पर्सन हु हैज द क्वालिटी टू बिकम माय कंज्यूमर, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट रीजंस ही इज not becoming my buyer till now.
लेकिन उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो मेरा गुड्स को परचेज कर सकता है, बट कुछ रीजन है जिसकी वजह से अभी तक परचेज नहीं किया है। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू emphasize on some of the factors कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कल्चरल। कल्चरल, यस फ्रेंड्स, हम कई बार कहते हैं कि भाई मेरा तो कल्चर ही ऐसा नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि वो कौन सी सोसाइटी है या वो कौन से बेस है जिसमें हमें पाला पोसा गया है, वो कौन सी चीजें जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी हैं। मैं फिजिकल गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने बेड, कितनी गाड़ियां, कितना क्या दिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द वे ऑफ लिविंग, कि हमारे पेरेंट्स ने हमको कैसे पाला पोसा है। तो दैट इज माय कल्चर दैट आई हैव टू फॉलो, एंड माय पेरेंट्स हैव बीन आस्किंग, बेटा इस चीज को ऐसे किया जाता है, ऐसे फॉलो किया जाता है, इस तरह से रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। दैट इज माय कल्चर। So first point I have to, when I'm trying to convert a prospective consumer into consumer, I need to look after his culture. Then subculture, like if I say I belong to Indian culture, very good. Then I belong to Uttar Pradesh. That means there is some other kind of culture followed in my own state, because there are, I think, 28 states are there. So each and every state is having different kind of culture. They perform, they celebrate different festivals. Their wearing style is different, costume style is different, their way of living is different, their food item is different, their way of worship is different. So this is what? This is subculture. And then social class. What social class do I belong to? Do I belong to very high class, that is high income group, low income group, or middle class family? So these things are also going to put a very important, and I can say they are going to influence my consumer, my behavior basically in a much more, हम कह सकते हैं कि जो social class है वो कुछ ज्यादा ही important role play करता है, because अल्टीमेटली जो मुझे खर्च करना है वो पैसा है। अगर पैसा होगा तो चीजें मैं परचेज करके ला सकता हूँ, आई विल बिकम अ कंज्यूमर। अदरवाइज कितना भी आप मेरे कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर लीजिए, मैं परचेज नहीं करूंगा टिल द टाइम आई डोंट हैव मनी विद मी। So these 3 points are under cultural system, that is culture, subculture, and the social class. Now coming to social reference group. Which group has reference about a product to me? The people who are like, if I say, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनके इनकम बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, वो होंडा सिटी को रेफरेंस नहीं देते, वो टाटा नैनो का रेफरेंस नहीं देते, वो स्विफ्ट का रेफरेंस नहीं देते। वो किस तरह की गाड़ियों का रेफरेंस देते हैं? लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, रॉयल्स रॉय। So if I belong to a low income group and I go to these people to take a reference about purchasing a car, are they going to give me a genuine reference? No. Why? Their reference will be according to their income group, their taste, their preferences. And since I belong to a low income group, I cannot purchase that. So in social, the first topic is reference group. What kind of people I am referring to get a reference for any kind of product. Then family. Obviously, family has to support, but sometime if family does not support, then what? Then we will not be able to purchase that product. So family also plays a very important role. Or which kind of family do I belong to? Do I belong to a very rich family who have been having land holdings, big land holdings, करोड़ों के मालिक हैं, अरबों के मालिक हैं, उनके बेटे को खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, they can. So that also plays an important role. Then roles and status. What kind of role do I have in the society and what kind of status do I have in the society? सर जी, ग्राम के गांव के हमारे पंचायत है, सॉरी पंचायत नहीं है, ग्राम प्रधान है। तो फ्रेंड्स, हमें तो पता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स में एक बार एंटर कर जाए, भले वो गांव, छोटे से गांव का पंचायत मतलब ग्राम प्रधान क्यों ना हो, उसके नोट गिनने के लिए हमें मशीनें लगानी पड़ जाती हैं।
तो और विधायक के और फिर मंत्री की सोचो क्या हैसियत होगी। तो अगर ऐसे लोग गाड़ी में नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ रोल दे आर प्लेइंग एंड द स्टेटस दे आर हैविंग इन द सोसाइटी। इसीलिए जो बड़ी बड़ी गाड़ी कार की कंपनियां वो सबसे पहले मंत्रियों के पास पहुंचते हैं। सी एनी काइंड ऑफ मिनिस्टर, very rare minister you will get those who are not having Fortuner or some kind of luxury cars. They all have. Why? कि भैया हम तो मतलब विधायक हैं, हम तो विधायक हैं या चाचा जी विधायक हैं। तो इसलिए that is the importance of the role and the status in the consumer behavior. Then coming to personal. What is personal? पर्टिकुलर एक बायर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करने वाली हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल को लेके चलते हैं तो एज एंड लाइफ साइकिल, स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, these are the things that are going to be considered for a particular person. Let me talk about age and life cycle. जब हम यंग होते हैं, बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, हम में से हर एक को ये बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। रोलेक्स की घड़ी अट्रैक्ट करती है ना। अरमानी का सूट बड़ा अट्रैक्ट करता है, पूमा के जूते अट्रैक्ट करते हैं, गुच्ची के चश्मे और जूते बड़े अट्रैक्ट करते हैं, काश हमारे पास भी होता। एट उस टाइम पे वो चीजें हमारी प्रायोरिटीज होती हैं कि अगर हमें मिल जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर एक किसी ओल्ड एज पर्सन से अगर आप इन सब चीजों के बारे में पूछेंगे तो सिंपल सा कहेगा, बेटा मुझे इन सब चीजों से क्या मतलब है, मुझे तो सिर्फ खाने के लिए मिल जाए और थोड़ा सा आराम मिल जाए बस बहुत है ना। तो एक लाइफ स्टाइल कहते हैं एज एंड लाइफ साइकिल, आप जिंदगी के किस पड़ाव पर हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। देन ऑक्यूपेशन, किस तरह के ऑक्यूपेशन से आप आए हैं। आप सरकारी जॉब करके निकले हैं, प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाकर आए हैं, या किसी बिजनेस हाउस से बिलोंग करते हैं। बिजनेस हाउस से बिलोंग करेंगे तो नो डाउट आपकी आदत में शामिल हो चुका होगा कि नॉर्मली सूट पहन के निकलना आपकी नॉर्मल आदत होगी, नॉर्मल फितरत होगी। लेकिन अगर आप किसी लो इनकम क्लास बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जो कि सिर्फ वो कहते हैं ना डेली बेसिस पर अर्न करते हैं और किसी तरह से अपनी जिंदगी को बसारा कर रहे हैं, तो वो तो धोती कुर्ता में बहुत खुश होंगे। तो ये ऑक्यूपेशन का स्टेटस हो जाता है। देन इकोनॉमिक सिचुएशंस, कैसी इकोनॉमिक सिचुएशंस है हमारी, कैसे हमारे पास कितनी फंडिंग हमारे पास है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डू आई हैव सेव्ड थ्रू आउट माय लाइफ, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मेरे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं then I am going to purchase the new things, but if I don't have economic resources then I will not purchase them. Then lifestyle, what kind of lifestyle do I have been practicing throughout my life, that is also going to decide the kind of consumer I am going to be. Then personality and self concept, what kind of personality I have and what is my self concept. So these are some of the factors of the personal attire, I can say personal group, that are going to affect consumer behavior. And then most important, psychological behavior. Motivation. Motivation is very, very important, my dear friends, in today's life where you have everything, each and everything around you is a challenge. To survive in this kind of environment, you need to have motivation. Let me give you an example of a very renowned political person, Dr. APJ Abdul Kalam. He belongs to a very, very poor family. बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे, जहां पे शायद 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। बट बिकॉज ऑफ द मोटिवेशंस दैट ही हैज गॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ, वो एक दिन हिंदुस्तान के प्रधान राष्ट्रपति बने, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये इतना आसान नहीं था कि गरीब थे बस अचानक सोच लिया और हम प्रधान राष्ट्रपति बन गए। जी नहीं, जिंदगी का एक अच्छा खासा लंबा सफर तय करना पड़ा। पहले पढ़ाई पूरी करी, फिर साइंटिस्ट बने, डीआरडीओ में वर्क किया, मिसाइल मैन बने, उसके बाद इन सारी चीजों करते करते देन आफ्टर ही बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
आज जहाँ एक छोटे से गांव का हमने जैसे बात करें कि अगर सरपंच भी हैं तो उनके पास नोट गिनने के लिए मशीन चाहिए होती है माय डियर फ्रेंड, तो आप खुद सोचिए कि जो पर्सन प्रेसिडेंट बना हुआ है उसके पास कितना पैसा होगा. बट ही वॉज ऑपोजिट, ही हैड नथिंग विद हिम. On his death, his property was read that in his property list, he has 2,500 books, 21 doctorate degrees, two, I think four T-shirts were there, two were of the organization DRDO and two was of himself, and two suits he had, one was his personal and one was his official. That is the total amount of property that Dr. Abdul Kalam had, and whatever amount of money he had earned while working in the DRDO or being a president of the country, he had donated all of that to his village. So that is the kind of motivation that he had. Now coming to perception, what type of perceptions do I have towards a particular product? कुछ लोग कहते हैं लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ के क्या करना है. बट दूसरी तरफ दूसरा आदमी है जिनका परसेप्शन नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, है ना. देन लर्निंग, व्हाट अमाउंट ऑफ लर्निंग आई एम हैविंग, द हाउ व्हाट इज द वे दैट आई एम लर्निंग डिफरेंट थिंग्स. अगर मेरी जिंदगी में लर्निंग हो रही है, देन आई नो दैट देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस और व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस इन द फेज ऑफ लाइफ. तो मुझे अपने हिसाब से फिर अपने परचेजिंग लेवल का पता रहेगा कि मुझे किन चीजों की परचेजिंग करनी है, किन की परचेजिंग नहीं करनी है. देन बिलीव्स एंड एटीट्यूड, व्हाट काइंड ऑफ बिलीव्स आई हैव and what kind of attitude I have towards different things. A positive attitude is very much necessary to become a successful person in the life. So when all these four factors, cultural, social, personal and psychological, are combined together, when we analyze them together, then only we are able to frame out those things with the help of which we are going to analyze the consumer behavior. We are going to come out with certain points which will help us to know what are the different factors which are influencing the consumer behavior, and how and what methods we can adopt to convert a prospective consumer into a consumer. इस तरह से करके हम अपने prospective consumer को consumer में बदल सकते हैं. So dear friends, I hope you have understood what is consumer behavior and what are the different factors that affect consumer behavior. Thank you. Thank you very much.